اور ابھی اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر دیں، اسلام آباد اور اس کے گرد نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 1 منٹ سے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے مناظر ہیں جہاں لوگ عمارت چھوڑ کے باہر نکل آئے ہیں۔ ایبٹ آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، گرد نواح، لاہور، ہری پور، مظفر آباد، دیگر شہروں سے زلزلے کے جھٹکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد اور اس کے گرد نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گزشتہ 1 منٹ سے زلزلے کے ان جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا ہے، گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، جبکہ یہ مناظر آپ سپریم کورٹ کے دیکھ رہے ہیں جہاں آج معمول کی سنوائی جاری تھی، لیکن لوگ عمارت چھوڑ کے باہر نکل آئے ہیں سپریم کورٹ کے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ زلزلے کے باعث سپریم کورٹ کا بینچ بھی اٹھ گیا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، مختلف شہروں سے خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد، میاں والی، سوات، لاہور، ہری پور، پشاور جہاں سے زلزلے کے جھٹکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ 1 منٹ سے یہ زلزلے کے جھٹکے جاری ہیں۔ اس وقت ایبٹ آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد اور مختلف قریبی علاقوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ملک بھر سے اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ثاقب عباس سے، ہمارے ساتھ موجود۔ ثاقب بتائے گا کتنی شدت محسوس کی جا رہی ہے ان زلزلے کے جھٹکوں کی؟ جی بالکل، اسلام آباد میں چند لمحے قبل جو ہے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے، اور اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے اور سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت بھی چل رہی تھی اور کافی شدید جھٹکے تھے، اور جتنے بھی لوگ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے وہ اس وقت باہر آ چکے ہیں اور تمام لوگ سنگت طیبہ کا ورد کر رہے ہیں۔ کافی زوردار جھٹکے تھے اور ان کی شدت کافی زیادہ تھی، اور اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ عمارتوں میں سے وہ باہر آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اسلام آباد میں بلند عمارتیں ہیں اور تمام عمارتوں سے لوگ جو ہے اس زلزلے کے جھٹکے کی وجہ سے باہر آ چکے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کیا اس وقت جو ہے کسی کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم جو ہے لوگ اس وقت کچھ سڑکوں پہ ہیں، کچھ عمارتیں جو بلند عمارتیں ہیں وہاں سے باہر آ چکے ہیں۔ کافی زیادہ شدت سے یہ جھٹکے تھے اور اس کے بعد تمام لوگ جو ہے عمارتوں سے باہر آ چکے ہیں۔ خوف و ہراس کی جو ہے یہاں پہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جھٹکے جو ہے کسی طرح سے کوئی نقصان تو نہیں ہے، تاہم ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن زلزلے کے جو جھٹکے تھے وہ کافی زیادہ شدید۔ ٹھیک ہے، شکریہ ثاقب عباس سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور کا رخ کریں گے، آصف جاوید ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے بھی اطلاعات ہیں۔ آپ سے بتائیے گا کتنا دورانیہ ہے ان زلزلے کے جھٹکوں کا؟ تقریباً یہ جو دورانیہ تھا زلزلے کا یہ تقریباً 10 سے 12 سیکنڈ کا تھا، اور اس کی شدت جو ہے وہ ابھی تک نہیں بتائی گئی کہ اس کی شدت کتنی تھی۔ جیسے ہی زلزلے کا پہلے جھٹکا آیا تو اس کے بعد زلزلے کا انتہائی تیز جو جھٹکا تھا وہ اس کے بعد آیا، جو کہ تقریباً 6 سے 10 سیکنڈ تک جو تھا وہ جاری تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دفاتر اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ دفاتر اور گھروں سے باہر موجود ہیں اور وہ خوف کے عالم میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی اس میں نقصانات کی تو ابھی تک نقصانات کے بارے میں اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ جو کنسرن محکمہ ہے اس کے مطابق ابھی تھوڑی دیر بعد جو زلزلے کی انٹینسٹی ہے اسے شیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو زلزلہ تھا وہ پشاور۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا آصف جاوید کہ اس وقت بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں؟ ابھی جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ تھم چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جو تھے یہ زلزلے کے جھٹکے جو تھے وہ انتہائی تیز تھے، جسے محسوس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو زلزلے کا جو تیز جھٹکا تھا وہ جھٹکے تھے وہ آئے ہیں، تقریباً وہ 6 سے 12 سیکنڈ تک جو تھے وہ جاری تھے۔ لوگ جو تھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، وہ کھلی میدان میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی جو لوگوں کی کثیر تعداد ہے وہ یہاں پر گھروں سے باہر اور دفاتر سے باہر موجود ہے، جن میں خوف کا عالم ہے۔ جو کنسرن محکمہ ہے اس نے ابھی تک زلزلے کی انٹینسٹی کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کی، کہنا کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے تمام انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی۔ اس وقت جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ تھم چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آصف جاوید، ہمیں پشاور سے صورتحال سے آگاہ کریں۔ ملک بھر میں مختلف شہروں سے زلزلے کے جھٹکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد اور گرد نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے جاری رہے، تقریباً 1 منٹ سے یہ زلزلے کے جھٹکے جاری رہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بلوچستان کے اضلاع بیلا میں 4.9 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی گہرائی
23 किलोमीटर थी, जबकि जलजले से मुख्तलिफ मुकामात पर घरों की दीवारों और छतों के गिरने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि जलजले के बाइस एक बच्ची जहां बहक हो गई, 3 अफराद जख्मी हुए। सिविल अस्पताल बेला में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। अहम अपडेट आ रही है, आपको बताएं कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के ये झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान का जिला बेला है जहां 4.9 शिद्दत का जलजला आया है, जबकि लाहौर से आपको बताएं कि लाहौर में 6.2 जलजले के झटकों की शिद्दत महसूस की गई है। रेक्टर स्केल के ऊपर बताया जा रहा है कि 6.2 है रेक्टर स्केल के ऊपर जलजले के झटकों की शिद्दत। महकमा मौसमियात की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में जलजले के झटकों की जो शिद्दत बताई गई है रेक्टर स्केल पर वो 6.2 थी, जबकि बेला से खबरें हैं जहां 4.9 शिद्दत का जलजला आया। इस वक्त आपको बताएं कि ये जलजले के झटके लाहौर के अंदर महसूस किए गए 12:09 पर और 1 मिनट तक दौरानिया जारी रहा है। ये खुसूसी मनाजिर है सुप्रीम कोर्ट के बाहर के, जहां महसूस किए जा सकते हैं जलजले के झटके। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने वाला बेंच जिसने मुख्तसर की समात और बेंच उठ गया जलजले के झटकों के बाद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहसिन मिलाल। मोहसिन बताइएगा लाहौर में भी क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में भी जो है वो जलज़ले के शदीद झटके महसूस हुए हैं और जो रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत महसूस की गई है वो 6.2 है और ये जलज़ला तकरीबन 55 से 60 सेंटीमीटर तक जो है वो रहा और तकरीबन तमाम दफातर में जो लोग थे वो भी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए जो है दफातर से बाहर आ गए, जबकि जो पब्लिक मकामात पर लोग थे वो भी जो है वो जहां पर थे वहां ही खड़े हो गए। और इसी तरह जो है वो दीगर मकामात पर भी जलज़ले के जो झटके महसूस हुए हैं तो लोग जो हैं वो घरों से बाहर भी आ गए हैं कलमा तैयबा का विर्द करते हुए। महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि ये जो जलज़ले के झटके महसूस हुए हैं इसका बताया जा रहा है। तहम लाहौर में जो शिद्दत महसूस की गई है और इसका दौरानिया तकरीबन जो है वो 1 मिनट तक रहा है। जी मोहसिन डाल हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि इत्तलात आ गई हैं कि जलजले का मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश का इलाका बताया जा रहा है, जबकि जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल के ऊपर 6.2 बताई जा रही है। इस वक्त आपको बताएं कि जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश था, गहराई 159 किलोमीटर थी। इस वक्त आपको बताएं कि काबुल और दिल्ली तक में ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद गिरदनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों को छोड़कर, दफातर को छोड़कर, बुलंद इमारतों को छोड़कर खुले इलाके में आ गए हैं। घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, चूनिया, खुशाब, मुजफ्फराबाद, बडग्राम, स्वात, मियांवाली, फैसलाबाद, कुसूर, जेहलम, समंदरी, तांदियावाला, जड़ावाला, पंसेरा, झकझुमरा, दीगर इलाकों से खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। जनूबी वस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बेला से भी खबरें आई हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाके जहां से जलजले के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। शबीहा बताइएगा क्या बताया जा रहा है? इस्लामाबाद में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, आपसे थोड़ी देर पहले जो है जलजले के झटके महसूस किए गए। शुरू में इसकी शिद्दत कम थी लेकिन थोड़ी ही देर बाद शदीद झटके थे, जबकि महकमा जो है जलजला पैमाना सेंटर का ये कहना है कि इसकी जो शिद्दत है वो 6.2 है, जबकि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है वो 169 मीटर है और इसका मरकज हिंदुकश रीजन है। जबकि ताहम उनका ये कहना था कि सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं, लाहौर, एबटाबाद, मानसेरा, दीगर और उसके गिरदोनवा में जो है वो इस जलजले के झटके महसूस किए गए। अभी तक जो है किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं आई। इसके बावजूद जो इदारे जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें अपडेट करी थी शबीहा नकवी। शबीहा नकवी का बताना यह है कि इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश था, गहराई 159 किलोमीटर बताई गई है, जबकि जलजले की शिद्दत 6.2 थी। ये बताइएगा शबीहा कितनी देर का ये दौरानिया था और इस वक्त लोग घरों से बाहर हैं?
जी बिल्कुल, इसका दौरानिया जो है वो 20 से 30 सेकंड का था। जैसे मैं पहले बताया कि शुरू में इसकी शिद्दत कम थी तो लोग जो थे अपने ऑफिस में थे क्योंकि आज वर्किंग डे है, लेकिन जैसे ही उसकी शिद्दत ज्यादा हुई तो लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए और फौरन अपने ऑफिस से बाहर निकले। और इस वक्त बाहर जो है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि वापस अभी ऑफिस में या घरों में जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब भी इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जरूर होते हैं। तो लोग अभी डरे हुए हैं और कोई भी जो है वो अपने घर या ऑफिस जाने के लिए नहीं है। लोग बाहर ही सड़कों पर ही इंतजार कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर कुछ और नहीं होता, कोई और झटका ज़लज़ले का नहीं आता तो उसके बाद वो अंदर जाएंगे। बिल्कुल, शबिया नकवी हमें अपडेट करी थी। आपको बताएं कि ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, 6.2 शिद्दत बताई जा रही है, जबकि मरकज बताया जा रहा है कोहे हिंदुकश का इलाका, जबकि ज़लज़ले का मरकज कोहे हिंदुश था। गहराई 159 बताई जा रही है। मुल्क भर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात आ रही हैं एबटाबाद से, पिशावर, हरीपुर, चूनिया, खुशाब, मुजफ्फराबाद, बडग्राम, कसूर, लाहौर, स्वात, मियावाली, फैसलाबाद, जेहलुम, चारसद्दा, जनूबी वजिस्तान, बलोचिस्तान, सराय आलमगीर, समंदरी, तांदियावाला, जड़ावाला, पंसेरा, चक झुमरा से, जबकि चिन्योट और हसन अब्दाल से भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। आपको बताएं कि नौशहरा, वर्का और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि लाड़काना में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस वक्त पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बिलाल ने। मोहसिन, बताइएगा, लाहौर में भी शिद्दत 6.2 महसूस की गई है। कोई जानी नुकसान, माली नुकसान की इत्तला मौसूल हुई? मोहसिन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? किसी जानी माली नुकसान की इत्तला मौसूल हुई है? और ये अपनी नैयत का लाहौर में जो है वो पहला ज़लज़ला बताया जा रहा है कि जिसकी शिद्दत जो है वो मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में न सिर्फ महसूस की गई है बल्कि पूरी लाहौर डिवीजन जिसमें कसूर, शेखुपुरा के इलाके भी जो है वो शामिल हैं, वहां तक जो है इसकी शिद्दत महसूस की गई है। ताहम इस हवाले से अभी तक ऐसा तो कोई इतलात मसूल नहीं हुई किसी जानी या माली नुकसान की। ताहम जो ही ज़लज़ला आया और इसकी शिद्दत जो 6.2 बताई जा रही है, उसकी वजह से जो है तमाम जो है दफातर में मौजूद जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो भी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए जो है वो दफातर से बाहर आ गए। लोग जो अब भी जो है वो घरों से बाहर मौजूद हैं और 1112 को के अदारे को भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। ताहम वो भी मुख्तलिफ मकामात से जो है इतलात ले रहे हैं और उन्होंने भी जो है वो अपने ज़राए से जो है वो तफसीलात जानना शुरू कर दी हैं। ताहम अभी ऐसा इतला नहीं आई कि कोई जानी या माली नुकसान लाहौर या इसके गिरदोनवा के इलाकों में हुआ है या नहीं। ठीक है, हमारे साथ रहेगा मोहसिन बिलाल। रुक कर रहे थे पेशावर का आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद। आसिफ, बताएगा पेशावर और उसके गिरदोनवा से क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? देखिए, अभी तक जो ज़लज़ले में किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तलात तो खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल नहीं हुई है। जो ज़लज़ले के झटके थे वो पेशावर के अलावा जो सूबे के दीगर अजला है वहाँ पर भी महसूस किए गए हैं। कंसर्न जो महकमा है उसके मुताबिक जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 6.2 कार्ड जो है वो की गई है। इस वक्त जो पेशावर में जो लोग हैं वो खौफ व हिरास में मुब्तला है। जैसे ही ज़लज़ले पहले झटका आया तो उसके बाद लोग दफातर में ही मौजूद थे, जिसके ठीक 5 सेकंड बाद जो थे वो शदीद किस्म के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोग जो है दफातर और घरों से बाहर निकल आए थे और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। लेकिन जैसे ही ज़लज़ले के झटके जो वो थम गए थे तो उसके बाद लोग जो थे वो अपने दफातर और घरों को जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ऐसे इतने हाई लेवल के ज़लज़ले के झटकों के बाद जो है इसके आफ्टर शॉक जरूर महसूस किए जाते हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो सड़कों पर ही मौजूद है, जबकि जो खवातीन हैं वो भी बाहर रोड्स पर और जो खुली जगह है वहां पर मौजूद है। शदीद जो खौफ और हिरास पेशावर के शहरों में ज़लज़ले के बायस जो है वो पाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो ज़लज़ले की जो में किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इतला जो है वो पूरे सूबे से मौसूल नहीं हो सकी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अभी तक ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के नुकसान की इतला इन्हें भी मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा जो अस्पताल है वहाँ पर भी अभी तक किसी से कोई भी जख्मी जो है वो नहीं लाया गया। ठीक है, आसिफ जावेद हमें अपडेट करते हैं पेशावर से, जहां ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गिरदोनवा से भी इत्तलात आ रही हैं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें इस अब तक जो इत्तलात हम तक मौसूल हो रही हैं उसमें सियालकोट, पसरू, रिनाला खोर्द, मर्दान, हसन अब्दाल, शेखपुरा, सरगोदा, गुजरावाला, नौशहरा, वर्का, पंसेरा, चक झुमरा, चिन्योट,
फैसलाबाद, जेहलम, चारसद्दा, जनूबी वजिस्तान, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिसमें बेला से एक बच्ची के जाँ बहक होने की इत्तला भी मौसूल हुई है, जबकि सराय आलमगीर, समंदरी, तांदियावाला, जड़ामारा, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, चूनिया, खुशाब, मुजफ्फराबाद, बडग्राम, कुसूर, लाहौर, स्वात, मियांवाली शामिल हैं। आपको ये भी बताएं कि जल्जले के हवाले से बता दिया गया है कि इसका मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदू कश का इलाका था। शिद्दत 6.2 थी। लोग खौफ और हरास की सूरत हाल में घरों को छोड़कर बाहर आ गए, अंदर जाने से इनकार कर दिया। जबकि आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम केसेस की समाअत जारी थी, ऐसे में बेंच उठ गया, मुलतवी कर दी गई है कुछ देर के लिए समाअत। वह टेक्सला से भी हमें इत्तलात मौसूल हो रही है जहां जल्जले के झटके महसूस किए गए। आपको ये भी बता दें कि ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान और दिल्ली तक में महसूस किए गए हैं। आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह कर रही हैं। आपको बताएं कि इत्तलात हैं कि लाड़काना में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि काबुल और दिल्ली भी ज़लज़लों से लरज़ उठा है। आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह कर रही हैं। आज मुल्क भर के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और इसके गिरदनवा में आपको बताएं कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदू कश का इलाका बताया जा रहा है, जहां ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदू कश था। गहराई 159 किलोमीटर बताई गई, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी। 1 मिनट से ज़ायद का ये दौरानिया था जिसमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लरज़ उठे हैं मुख्तलिफ शहर। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस्लामाबाद उसके गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, पेशावर, हरीपुर, चूनिया, खुशाब, मुजफ्फराबाद, बडग्राम, कुसूर, लाहौर, स्वात, मियांवाली, फैसलाबाद, जेहलम, चारसद्दा, जनूबी वजिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सराय आलमगीर, तलागंग, समंदरी, तांदियावाला, जड़ावाला, पंसेरा, चकझुमरा, चिन्योट, कलरकहार, नौशहरा, बरका, गुजरावाला, सरगोदा, शेखपुरा, हसन अब्दाल, मर्दान, दिलनाला, पसरूर, सियालकोट व टेक्सला में भी ये झटके महसूस किए गए। जबकि आपको बताएं कि ज़लज़ले से काबुल और दिल्ली भी लरज़ उठे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। साकिब अब्बासी ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। साकिब बताइएगा, ज़लज़ले के बायस मुलतवी की गई थी मुख्तलिफ समाअत, क्या दोबारा बेंच बैठ गया है? जी बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और इस्लामाबाद में शदीद किस्म का जो यहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद फ़ौरन बाद जो तमाम जो लोग थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कलमा तैयब का विर्द करते हुए बाहर आ गए। और यहाँ पे इस वक्त भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि ये जो मामला जो है, क्योंकि खौफ व हरास की सूरत हाल है, इस वक्त यहाँ पे लोग कलमा तैयब का विर्द कर रहे हैं। और अब जो है दोबारा से जो, क्योंकि जो समाअत चल रही थी वो भी बेंच मुलतवी कर दिया गया था और अब दोबारा से जो है समाअत हो चुकी है। और इस वक्त लोग जो है अभी भी बाहर मौजूद हैं, ताहम कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता अब दोबारा इमारतों में जाना शुरू हुए हैं। इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसके साथ साथ स्कूल का वक्त भी है और स्कूलों में भी जो है इस वक्त बच्चे ज़ेर तालीम थे और काफ़ी जो जितने भी इमारतों में लोग थे वो बाहर आ चुके हैं और कलमत तैयबा का विर्द करते रहे। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा जो है वापस जाना शुरू हुए हैं। ठीक है साकिब, ये बताइएगा 6.2 ज़लज़ले की शिद्दत थी, 1 मिनट का दौरानिया था, क्या अभी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, 6.2 का बताई जा रही है ज़लज़ले की शिद्दत। और इस क्योंकि जो दौरानिया इसका काफ़ी ज़्यादा था, बट काफ़ी ज़ोरदार झटके थे और इसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास पाया गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इमारतों से बाहर हैं, सड़कों पे लोग मौजूद हैं और एक खौफ व हरास की सूरत हाल है। ताहम अभी तक आफ्टर शॉक कोई दोबारा से देखने में नहीं आया, ना ही महसूस किया गया। लेकिन जो है लोग इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या पता दोबारा ना ज़लज़ला हो या आफ्टर शॉक ना आए, ताकि वो उन्हें दोबारा से कोई खतरा हो, इसलिए अभी तक लोग जो है इमारतों से बाहर मौजूद हैं। जी ठीक है, शुक्रिया साकिब अब्बासी अपडेट करने के लिए। साथ ही मौजूद रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नूर इलाही बुगटी ने। आपको बताएं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में। बलूचिस्तान के ज़िला बेला से भी इत्तलात हैं जहाँ ज़लज़ले की जो गहराई है वो 23 किलोमीटर बताई गई है। ज़लज़ले से मुख्तलिफ मुकामात पर घरों में दरारें पड़ गई हैं, दीवारें और छतें गिरने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़लज़ले के बायस एक बच्ची जाँ बहक हो गई है, 3 अफराद जख्मी हुए हैं। हमें ये इत्तलात बेला से मौसूल हो रही हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल बेला में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। बेला की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे नूर इलाही बुकरी से। नूर, बताइएगा, इत्तलात आ रही है बेला में एक बच्ची जहां बाग हो गई, 3 अफराद जख्मी हैं, इत्तलात आप क्या कंफर्म करेंगे? जी बिल्कुल, ये बेला में आज जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिदत 9 महसूस की गई है। इसके नतीजे में जो बेला के घरों के दर दीवार जो है वो लरज जो है, इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं, एक बच्ची उसमें वाक़े में जो है वो जांबाक हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी है। इस वाक़े के फौरी बाद वहाँ बेला के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जिला इंतजामिया जो है वो भी वहाँ पर पहुँच गई। जी नूर इलाही बुकटी में अपडेट कर रहे हैं। नूर, ये बताइएगा, ये तो बेला की सूरत हाल है, मुख्तलिफ अजला से क्या इत्तलात आ रही है बलोचिस्तान के? तो सिर्फ बेला से इत्तलात आ रही है कि वहाँ पर जो है वो जल्जला महसूस किया गया, जबकि बाकी बलोचिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी इत्तला नहीं है। तमाम जो मुल्क की दीगर इलाक़ों में वहाँ भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, नूर इलाही बुकटी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपडेट से आपको आगाह कर दें। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जलजले के झटकों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसका मरकज़ बताया जा रहा है जलजले का अफगानिस्तान में कोही हिंदू कश का इलाका, जिसकी गहराई 159 किलोमीटर थी। इस वक्त आपको बताएं कि एबटाबाद, पेशावर, हरीपुर, चूनिया, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, बडग्राम, कुसूर, लाहौर, स्वात, कलर कहार, बन्नू, हंगू, नौशहरा, वर्का, गुजरावाला, सरगोदा, शेखुपुरा, हसन अब्दाल, मर्दान, रिनाला कोट, पसरूर, सियालकोट, वाह, टेक्सला, रावला कोट, हजीरा, अब्बासपुर, फॉरवर्ड कहूटा, पलंदरी, आज़ाद कश्मीर से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अलबत्ता इन जगहों से किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जानी नुकसान की इत्तला बेला से आई है, जहां एक बच्ची जाँ बहक हो गई, 3 अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ मुकामात पर घरों की दीवारें, छतें गिर गई हैं, दीवारों में दरारें भी पड़ गई हैं, जबकि बेला के अस्पताल में इमरजेंसी का नफाज किया गया है। बल्कि इस वक्त आपको ये बताएं कि जो मुख्तलिफ शहर है वहाँ से इत्तलात तो मौसूल हुई है, लेकिन किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई।